So, good evening, Namaskar, or welcome to this edition of Highway Encounters. Our guest today is an interesting young lady who is a family person, married, has a child, a professional, has worked in the area in a private sector company, multinational private sector company, and is currently working with a public sector enterprise. Uh, the lady's name is Nupur Jain. Uh, so, Nupur, आपका स्वागत है. Welcome to Highway Encounters. And let's start at the beginning. When you were in school, you dramatically lost your vision. What is the story? Thank you, George, for inviting me here. And let me directly start with the question. Can I be bilingual, Hindi और English थोड़ा थोड़ा मिलाकर? जरूर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों दोनों में बात कर सकते हैं. Sure. So I came back it was a month of January and I was around 9. I came back from school. I had severe headache. I told my mother. She said, "Must be because of you are hungry. You would have not eaten your lunch." So she gave me an apple to eat. I took a bite, but suddenly I fainted. The bite left inside, and the apple fell from my hand. That was a shocking moment. My mother could not understand. My father could not understand. They took me to hospital. They just said it's a typhoid sort of a thing. They admitted me in hospital. It went on for 15 days. It happened so much that I was completely bedridden. I was not able to go to washroom and all also, and there was no bladder control. It was happening in the bed. So thing worsened. My father got really worried what to do kinds, and I come from a small place in Haryana. Uh, so there were not big doctors, big hospitals. So my father went to the doctor and said, discharge her. I'll take her to the bigger hospital in Jaipur. Jaipur was the nearest big city to our place. So जी. doctor did not allow. Then with a lot of झगड़ा एंड लड़ाई उन्होंने अपने आप से ही कंपाउंडर से थोड़ा सा पैसे अलग से देके कि इसको ड्रिप वगैरह हटा दो करके टुक मी इन एम्बुलेंस टू जयपुर. वहां पे जाके भी डॉक्टर 15-20 दिन समझ नहीं पाए थे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. एंड टिल द टाइम आई वेंट इनटू कोमा. For almost a month and a half I was in coma. Then doctors realized it was tuberculosis meningitis. तो उसकी अब फाइनली उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करी. तो आफ्टर 5-7 days आई केम इनटू माय कॉन्शियस. तो मुझे होश आया. तो वो बहुत सडन मोमेंट था. सबके पैरों तले जमीन निकल गई थी क्योंकि इट वाज 12 noon एंड आई आस्क्ड माय मॉम कि मम्मा इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, लाइट जलाओ ना. एंड बहुत अच्छा धूप आ रहा था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे. तो मम्मी कहती क्या बात है. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. So that was a shocking thing, but slowly and gradually, क्योंकि उस वक्त I was so much weak कि मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे. I was completely with my parents कि वही मुझे सब काम करा रहे थे. तो डॉक्टर ने कहा अब ये तो हो गया जो होना था, दिख नहीं रहा है because tuberculosis meningitis had damaged my optic nerve. बट इतना नहीं इम्पैक्ट किया था कि मेरे हाथ पैर नहीं फिर से चल पाए. तो विद लॉट ऑफ मेरे मम्मी पापा की मेहनत से एंड with the blessings वो अच्छे हो गए और चलना फिरना शुरू हो गया. Then they got me back to the house. घर पे ले आए जब ठीक हो गया सब कुछ. तो अब क्वेश्चन था मार्च अप्रैल आ गया था जनवरी से कि अब क्या करें क्योंकि स्कूल जो मेरा नॉर्मल था वो मुझे ले नहीं पा रहा था. तो that was a major turning point. उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे या जॉर्ज नहीं, मैंने देखा है आपका रिज्यूमे में आपने लिखा है कि यू डिड योर स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल. जी. तो ये तो after you lost your sight, you joined Delhi Public, or were you at Delhi Public School even before? It was initially when I lost my sight, I was around 9 years old. I was in class 3-4. So initially मेरा मतलब in terms of my English understanding was not so good. तो थोड़ा सा gradual step लिया. So I went to a government school in Delhi when I got admission in National Association for the Blind. Rehabilitation किया मेरे parents ने मुझे.
तो वहां से गवर्नमेंट स्कूल में गई. व्हेन आई परफॉर्म्ड वेल तो थोड़ा सा और अच्छा स्कूल में गई. देन आई वेंट टू सेंट मेरी स्कूल which is in Green Park in Delhi. फिर gradually when Right. the performance was better, then I was integrated to Delhi Public School in class 11. Okay. तो ये जब आपने कहा रिहैबिलिटेशन और यू मूव्ड इनटू गवर्नमेंट स्कूल एंड देन इनटू ग्रीन पार्क में जो सेंट मेरी स्कूल है, उसके बाद सो व्हाट वर द काइंड ऑफ tangible changes in the way you worked? मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है जॉर्ज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उस वक्त जो मैंने अपने अंदर जो चेंजेस लाए, वो एक तो जो मेरे साथ हो गया था उसको एक्सेप्ट करके अब मैं इसको कैसे बदल सकती हूँ. अब जैसे मुझे हॉस्टल में आना पड़ा था, उसके पहले तक आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स, तो मुझे कपड़े भी धोने नहीं आते थे, मुझे जूते के लेसेस भी बांधने नहीं आते थे. तो सबसे पहले मेरे को उन्होंने हॉस्टल में रखा और मेरी मम्मी को भी साथ में रखा कि इसको थोड़ी सी बेसिक चीजें सिखा दीजिए. तो मुझे वो सीखने के लिए 2 से 3 दिन लगा, उससे ज्यादा 3 नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहीं रहना है, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहेंगी, मुझे कपड़े भी पहनने हैं, पहचानने भी है, बटन भी लगाना है, तो सब अपने आप करना है. तो उसको जो मान लिया ना मैंने, जो एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो इसके साथ रहना है मुझे, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई डिड विद माई सेल्फ. और उसी ने मतलब आगे मुझे बढ़ने में मदद की है. I see that you have graduated in political science from Lady Shri Ram College. Yes. So Lady Shri Ram College is one of the best colleges in Delhi University. So इसके लिए you must have done extremely well in your +2. I did. उस जमाने में बहुत अच्छा होता था, बट प्रॉब्ली आज की तारीख में वो परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं होती जॉर्ज. या तो व्हाट वाज उस जमाने के अच्छा परसेंटेज क्या था? इट वाज अराउंड 83. Okay, that's pretty good. And so political science जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया, and then you went to TIS in Mumbai and did your masters in human resource management and labor relations, I think. Yeah. And I read that you joined one of India's top private sector companies. So normally it's extremely difficult for a visually impaired person to get a job in a private sector company. So tell us the story behind your Wipro job. That was a struggle initially when I was at TISS MBA करने के टाइम पे. See, in terms of a profile, being a visually impaired person, मेरे प्रोफाइल में दिल्ली पब्लिक स्कूल था, सेंट मेरी स्कूल था, लेडी श्री राम कॉलेज था, एंड देन TISS था. तो प्रोफाइल बहुत अच्छा था. जब वहाँ और टेस्ट में 100% प्लेसमेंट्स होती थी, और आई वॉज द थर्ड पर्सन, मतलब जब से उस 2008 में व्हेन आई वाज अबाउट टू प्लेस इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसमें मैं थर्ड बंदी हुई थी ऑफ अ विजुअल विद विजुअल इम्पेयरमेंट. तो उन लोगों के पास भी चैलेंज आ रहा था कि मेरे को कैसे प्लेस करेंगे. तो इनिशियली जो रिज्यूमे होता था वो सिलेक्ट हो जाता था, बिकॉज उसमें मैंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि मैंने विजुअली इम्पेयर्ड नहीं लिखा था अपने रिज्यूमे पे. And that was a conscious decision I had taken, because although I accepted the impairment in my life, but I don't make impairment as my excuse or a way to my success. That's अब life में है कुछ तो वो that's a part of life. You don't need to highlight it. तो इसलिए मैंने रिज्यूमे में नहीं लिखा था कि I'm a person with visual impairment. तो almost 25-26 companies came on the campus and they all selected my resume. अब बात यहाँ आती थी, जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो सब बोलते थे हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास आप कैसे काम करेंगे, हमारे पास आपके लिए रीजनेबल अकोमोडेशंस नहीं है. सो मच सो कि एक ने तो मुझे अंदर बुलाया और क्लियरली बोल दिया कि हम आपको हायर नहीं कर सकते, ऑल्दो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है. तो मैंने कहा कि मुझे सब कुछ आता है, आई हैड माई लैपटॉप विद मी. तो एक मैंने बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मुझे पता था कि ये लिमिटेशन हो सकती है. सो आई कैरीड माई लैपटॉप अलोंग विद मी, और मैंने उनको ये बोला प्लीज जस्ट मेरे को 10 मिनट्स दे दीजिए, लेट मी शो कि मैं कंपनी में कैसे काम कर सकती हूँ. आपका हायरिंग करना नहीं हायरिंग करना दैट्स अप टू यू.
So with a lot of requests, with lot of begging, मैंने उस कंपनी को दिखाया कि I can make a PPT, I can work on Excel, I can write on Word document, I can work on emails, Gmail खोल के दिखाया, मेल करके दिखाया, सब करके दिखाया, but still by the end of the day person joined his hand. उसने verbally मुझे बोला, मतलब that person said कि हाथ जोड़ के मेरी माफी है, although मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, यू आर एन इंस्पायरिंग लेडी, बट हमारी कंपनी आपको हायर नहीं कर सकती है. सो दैट वाज द थर्ड डे ऑफ प्लेसमेंट हमारे जो कॉलेज में चल रहा था. द फोर्थ डे सुबह सुबह विप्रो केम एट 7 in the morning. मैं डिसअपॉइंटेड थी, डिजेक्टेड भी थी, इतना करने के बाद में भी, रिक्वेस्ट करने के बाद में भी मुझे किसी ने हायर नहीं किया था अभी तक. और तो अगेन ये जब विप्रो आई थी कैंपस पे, विप्रो का कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट था जो कि पिक्चर बेस्ड था, पिक्चर पे देख के कुछ स्टोरी लिखना था. तो अब मुझे मतलब देयर वाज लॉट ऑफ एंगर इनसाइड मी, सो आई वेंट टू द हायरिंग पर्सन who had come onto the campus and I said, you have come to hire here, right? So the person said yes. मेरी प्लेसमेंट टीम थोड़ा सा कंसर्न थी कि नुपुर आप ऐसे बातें नहीं करो. मैंने कहा यार 3 दिन निकल गए, चौथा दिन आ गया, नाउ आई हैव no way but to show my anger. So they were standing with me. तो मैंने उनसे पूछा आप हायर करने आए हैं ना? तो बोले हाँ हम हायर करने आए हैं. So they said I asked them कि आप हायर करने आए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ भूल गए आप? अब यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो how will I write your test? The person kind of got really shocked कि किस तरह का सवाल पूछ रही हूँ मैं. तो he was very sensitive. He asked me how do you think can we give you equal opportunity? So तब मुझे थोड़ा मजा आया कि wow, now I have something to tell him and then probably वो मुझे कुछ दिखाएंगे. तो मैंने उनको बोला या तो आप मुझे कुछ क्वेश्चनएयर दीजिए बना के based on this and I can write my answers. One. Second is या तो आप मेरे सामने बैठिए, मुझे पिक्चर पूरा एक्सप्लेन कीजिए and then give me some time, I'll type something, type whatever people are writing on paper, I'll type it on my laptop. They said, okay, give us some time, we will get back to you. तो वो करीब 1 घंटे बाद फिर से मेरे पास आए, बोले कि हम आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, आप हमें आंसर दीजिएगा. सो दैट वाज द फर्स्ट फाइट जो मुझे लगता है मैंने जीती. एंड देन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए with while they asked me question, उन्होंने मुझसे परमिशन मिली कि कैन वी रिकॉर्ड द होल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज उनको आगे जाके अपने हायर अप्स को भी बताना था इफ यू आर रिजेक्टिंग और सिलेक्टिंग समवन व्हाई. तो मैंने कहा गो अहेड प्लीज रिकॉर्ड इट. दे रिकॉर्डेड इट. रिकॉर्डिंग जब ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू हैपेंड, उसके बाद में उन्होंने मुझसे काफी कुछ बेसिक सवाल पूछे. अगेन वही कि आप कैसे मूव करेंगी, आप एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे कैसे जाएंगी, आप हरियाणा की रहने वाली हैं, पेरेंट्स विल नॉट स्टे विद यू, हाउ विल यू मैनेज योरसेल्फ इन अ न्यू प्लेस, वो सब उन्होंने मुझसे पूछा. तो माय ओनली आंसर देम वाज मैंने अब तक पढ़ाई भी अकेले की है. माय पेरेंट्स वर नॉट लिविंग विद मी, आई हैव लिव्ड इन हॉस्टल सिंस क्लास 3. तो अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब तो आई कैन मैनेज माई सेल्फ, आई कैन कुक अ लिटिल फॉर माई सेल्फ. अब मुझे मोबिलिटी भी आती है, अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है, जीपीएस वगैरह यूज कर सकती हूँ, सो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. पर यहाँ पे जो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा काम किया कि आई वॉज वेरी अपफ्रंट कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लिमिटेशन थोड़ी सी क्या हो सकती है. सो आई टोल्ड देम थोड़ा सा जो काम है वो जो इमेज बेस्ड होगा वो काम थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए करने के लिए. बाकी इन टर्म्स ऑफ वो मुझे एचआर रोल के लिए हायर करने आए थे, तो मैंने कहा वर्किंग विद पीपीटीज, वर्ड डॉक्स, एक्सेल, वर्किंग ऑन ईमेल्स, आउटलुक. और उसके पहले मैंने इंटर्नशिप भी की थी आईबीएम में फॉर 2 months. सो दैट वाज अ बिग एक्सपोजर कि ईमेल्स में कैसे हमको एक्सेसिबिलिटी है, कैसा काम कर सकते हैं. सो आई कुड वाउच फॉर माई सेल्फ कि आई कैन वर्क ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर जहाँ थोड़ा इमेज आती है वहां पे. सो आई हैड टू एडुकेट देम कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ. देन फाइनली इंटरव्यू हैपेंड. इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी टू प्रेजेंट अ स्मॉल टॉपिक, दे गिव मी एंड दे आस्क्ड मी टू प्रेजेंट. तो उन्होंने वही मुझे अपने सामने बिठाया, आधा घंटा मुझे करीब अराउंड 45 मिनट्स दिए उन्होंने, और वही की वही उन्होंने बोला कि हम आपको देखेंगे आप पीपीटी कैसे बनाते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो another third thing which I did very well was कि I went
with my technology, with my equipments in front of them, so that I could showcase my own skill and talent in front of them. Right. They liked it. They kind of immediately after uh, all the interviews happened of my classmates and everything. By the end of the day, around 6 in the evening, they gave me an offer. Excellent. So that was a motivating thing. That was a hugely motivating thing, and they were very clear कि हमारे पास किसी तरह का reasonable accommodation नहीं है, हमारे पास policy भी नहीं है. But यहाँ पे आपको हमें मतलब they asked me to help them how they can help me in order to make myself perform and contribute to the organization. So बहुत upfront, बहुत मैंने open communication रखा वहाँ पे क्या क्या मुझे चाहिएगा to make myself productive. Next day was again a good day. I got an offer from Dr. Reddy's and HPCL both. So there were 3 offers now with me. So that's All how three, all 3 were HR opportunities. Hanji, because I was doing my specialization in HR, a master's in human resources management and labor relations. So one quick question over here. आपने बीच में बोला था कि you did an internship with IBM. Hanji. So ये जो internship for students, not just for blind students, but for other students also, is the responsibility of finding an internship with the student, or the institution helps you find an intern? Institution does that because again TISS is a place जहाँ पे institute 100% आपकी internships भी कराता है, आपका placement भी देता है. So IBM had no problems when they realized that you were visually impaired, or there was a fight there also? Not really. Why? Because IBM, I was placed in learning and development in IBM. और जो hire करने आए थे, they were also looking for a candidate for that particular role. So वहाँ पे already there was a person with visual impairment and he himself had come to hire. Oh, okay. So, yeah, so that was an opportunity for me. उनको मुझे ज़्यादा educate नहीं करने पड़ा था. Only education that I had to do for him was how will I settle myself in Bangalore again. I did my internship in Bangalore. Right. Okay, the other question is, you mentioned that alongside Wipro के साथ there were 2 other offers, one from Dr. Reddy's or another from HPCL. HPCL. So was the interview process similar? Meaning, was it, meaning, did you have to kind of drive the interview the way you did with Wipro, or they were prepared for you? HPCL was prepared. Again, जैसे internship किया था with IBM, similar way I did a 1 month का project with HPCL. Okay. And अपने आप से किया हुआ था. That was not through institution. Right. Fortunately, they had come on the campus and they knew me already. तो उन्होंने छोटा सा एक interview, verbal interview किया था. That was not a tough one. That was easily done. Okay. But yes, Dr. Reddy's का थोड़ा सा मुश्किल था. Again, like Wipro के hiring people आए थे. Likewise, they were also not very sure कि किस तरह से मेरे को hire करना है. So why did you choose Wipro finally? I chose Wipro because Wipro is a paperless organization. It's an IT organization. It'll give me a better opportunity to work around and show my talent, perform well in the organization. Second reason was they were giving me Bangalore initially. And since I come from Haryana, I was looking at working at Gurgaon or Greater Noida office later on. Yeah. So उनके जो offices हैं वो pan India हैं जहाँ पे HR को opportunity milti hai to work around and to move around. But with Dr. Reddy's, the case is not the same. Unka HR processes and HR team sits only in Hyderabad. Yeah. And manufacturing होने के कारण वो बहुत ज़्यादा paperless नहीं है. There is a lot of work which is happening on paper. So why don't you tell us a little bit about your early days at Wipro? Days at Wipro, initially पहला साल जो था was very challenging. As I said, उनको नहीं पता था कि मुझे किस रोल में डालना है, क्या काम कराना है. They were still grappling with it. और again notions, inhibitions बहुत थे कि मैं क्या कर पाऊंगी, क्या नहीं कर पाऊंगी. So as I said, मैंने IBM में जो internship की थी वो learning and development में की थी. तो जब Wipro में इन्होंने मुझे hire किया तो उनके मन में बस एक ये बात थी कि इसने internship किया है learning and development में, तो probably she would be able to work यहाँ पे भी learning and development में. तो उन्होंने मुझे learning and development team में रखा था. But still they had inhibitions कि मैं facilitation कैसे करूंगी, training कैसे करूंगी,
मेरे सेशन में लोग सो जाएंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो सो गए हैं, या चुपचाप से कोई बाहर निकल जाएगा दरवाजे से, तो सिंस आई कांट सी, तो कैसे पता लगेगा वो चुपचाप से बाहर निकल गए। और ये इनहिबिशंस थी, बट दे वर नॉट वेरी वर्बल अबाउट इट। तो वो दे वर बीटिंग अराउंड द बुश कि नुपुर आप ये थोड़ा पेपर पढ़ लो, इसका थोड़ा सिनॉप्सिस बना के दो, इसका एक समरी बना के दो। तो 1 साल तक उन्होंने मुझे इसी तरीके का काम दिया है, कुछ एक रिसर्च पेपर दे दिया कि इसके हाइलाइट्स बता के ढूंढ के दो, रीड करके ढूंढ के दो। On the flip side, although it was मतलब थोड़ा सा बोरिंग काम था, and this I was not looking at this kind of a work. On the flip side, it helped me to expand my own knowledge कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मैं क्या कर सकती हूँ और क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च पेपर आते थे, वो जो वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती थी, उन्हीं पे बेस्ड वो मुझे वाइट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स देते थे। और जब मैं वो पढ़ लेती तो मैं जाके कुछ वहाँ पे जो सीनियर फैकल्टीज होते थे सेशन करते थे, मैं उसमें जाके बैठ जाती थी। तो वो मेरे लिए इन अ वे बहुत बड़ा फायदा हो गया था। बट आई हैड टू अगेन अगेन टेल देम दैट कि मुझे ये करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो मैंने बहुत क्या कह सकते हैं कि मैंने अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया, मैंने खोजने की कोशिश करी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब 1 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया था, मुझे अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखना था, और जो मेरे गोल्स सेट हुए थे ऑर्गेनाइजेशन विद माय बॉस, उसमें मैंने 0.5% भी अचीव नहीं किया था, बिकॉज मुझे उन्होंने उस तरह का इनहिबिशंस इतनी चल रही थी कि मैं उतना काम कर ही नहीं पाई थी। तो मेरे बॉस से सिंपल मेरा क्वेश्चन था कि आप मुझे ऐसे ही बिठा के सैलरी देते रहेंगे या फिर डू यू हैव समथिंग इन माइंड। तो उन्होंने मुझे बोला, नुपुर आप क्यों नहीं कुछ करते हो। मैंने कहा, अगर आप मुझे अलाउ करते हैं, कैन आई डू अ सेशन ऑफ 2 hours, एंड जस्ट फॉर 2 hours अगर उसका फीडबैक देख लीजिए, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, इन केस आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, आई रिजाइन राइट देयर। बट इफ द स्कोर इज गुड एंड द पीपल आर एंगेज्ड, देन आई विल डू द ट्रेनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। सो चैलेंजिंग था, काफी सारे लोग मेरे सेशन में जस्ट बैठे थे देखने के लिए कि ये क्या करती है, क्या नहीं करती है। So question here, before you get into the actual story, what was the हाँ जी, subject of your training? आपका training का subject क्या था? सब्जेक्ट What were वाज you going to अराउंड train them about? डाइवर्सिटी ओरिएंटेशन। उस वक्त विप्रो बहुत एक्सपैंड कर रहा था इन टर्म्स ऑफ Right, डाइवर्सिटी। सो nationality, right. different cultures, different cultural diversities, gender diversity. Wipro is also working in the privilege sector. So socio-economic background पे भी वो diversity बहुत अपने आप से एक्टिवली रन करते हैं। सो इट वाज ऑल अराउंड जो डाइवर्सिटी रन कर रहे थे, उस पे मैंने जस्ट सेंसिटाइजेशन प्लान किया था। तो So tell us about this first. या तो जो वर्कशॉप मैंने पहले किया था, उसमें मुझे काफी होमवर्क करना पड़ा था। जो जहाँ पे मैंने उसको जाके इन डिटेल ओरिएंटेशन किया था कि कहाँ माइक रहेगा, कहाँ मेरा टेबल है, कहाँ प्रोजेक्टर है, कहाँ स्क्रीन है। एक एक डेस्क पे जाके देखा था कि मेरे रीच से कितना दूर है, मुझे कहाँ देखना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप को एडुकेट किया था कि कैसे होगा। वन सेकंड में मैंने जो पीपीटी अपना बनाया था, दैट वाज मिनिमम, दैट वाज अराउंड 9-10 स्लाइड्स 2 hours के लिए। पर मैंने उसमें बहुत सारे एक्टिविटी डाले थे टू हेल्प माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि लोग सो नहीं रहे हैं। और हर एक टेबल मैंने उनको टेबल में डिवाइड कर दिया था, जिससे कि आई नो कि कौन टेबल पे कौन कितने लोग हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। सो दैट मुझे पता लगे अगर कोई रूम से निकल भी गया है चुपचाप से, क्यों निकल गया और कैसे कब निकल गया है। सो दैट्स हाउ आई हैड डिजाइंड द होल प्रोग्राम। कुछ मैंने अपने आप से रीड करके सीखा था हाउ टू फैसिलिटेट अ प्रोग्राम। कुछ मैंने हमारे सीनियर लीडर्स के जो प्रोग्राम्स अटेंड किए थे, उनमें से सीखा था हाउ दे आर एंगेजिंग देयर पार्टिसिपेंट्स। तो वो सेशन was a highlight, was very hit. I got around 96-97% score from my participants. Very And it good. was attended by around 36 people. I still remember the number. Right. That was I would not say
a huge success, but that was a success where people got to understand कि अच्छा ठीक है ये facilitation कर सकती है. फिर उसके बाद तो there was not there was no stop. उसके बाद तो I was covering like 15,000 people a year through training. Right. So all in Bangalore, or you had to move around? I had to move around the country. कोई बैंगलोर में होता था, कोई मुंबई में होता था, कोई चेन्नई में होता था, कोई कोच्चि में होता था. For 2 years, I joined Wipro in 2008. 2009 से मैंने प्रोग्राम शुरू करने शुरू किए थे. 2009, 10 and 11. 11 के मिड तक, जुलाई अगस्त तक I was running up and down every day. I used to be somewhere in the country. So how were you traveling? By train, by air, or by road? Meaning, and were you doing it alone? Was there somebody accompanying you? Meaning, tell us a little bit about that. I did it all alone. कभी कभी कुछ सेशंस होते थे जो को फैसिलिटेट करने होते थे, जैसे 2 लोग मिलके करते थे. तब one of the colleague used to travel with me, but most of them used to be alone. And कैसे करती थी? ट्रेन से नहीं करती थी. I have never traveled by train for any session. It used to be mix of air travel and road travel. तो जैसे बैंगलोर से दिल्ली, बैंगलोर से चेन्नई जाना होता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय रोड. वहीं से ऑफिस का कैब लेती थी मैं. एंड यहाँ पे आई वाज वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ माय सेफ्टी. There used to be vendor cabs also. There used to be office cabs also. So उसके लिए थोड़ा स्पेशल अप्रूवल लेना होता था फ्रॉम माय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कि आपको ऑफिस का ही कैब चाहिए, ऑफिस का ही ड्राइवर चाहिए. बट आई यूज्ड टू डू दैट बिफोर हैंड कि मुझे चेन्नई जाना है, इस डेट में जाना है, एंड आई विल टेक ऑफिस कैब. I will not travel by the vendor cab in terms of my safety. तो थोड़ा सा ये proactive step लिया था मैंने in terms of my travel. वहां पे भी मान लीजिए मुझे हैदराबाद जाना है, वेंडर अपने ऑफिस के कैब से मैं एयरपोर्ट गई हूँ. I boarded the flight, I got down, और वहाँ यहाँ से जाने के पहले I used to book my ऑफिस वाला कैब for हैदराबाद एयरपोर्ट टू ऑफिस. वहां पे भी क्या होता था कि आप ऑफिस इन हाउस अकोमोडेशन में रहेंगे कि ऑफिस के टाइप्स अकोमोडेशंस में रहेंगे. सो आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि मुझे ऑफिस इन हाउस अकोमोडेशन मिले, अगेन फॉर माय सेफ्टी. तो ये सब काम थोड़ा सा मुझे पहले करके जाना पड़ता है, एंड दिस यूज्ड टू बी एन एडिशनल वर्क. बट बीइंग अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड दैट टू अ वुमन, वो जरूरी है करना. What about from my perspective? What about air travel? Meaning, was that a challenge, or air travel is okay? The airlines look after you. Airlines mostly looked after me. एक जगह पर it was an issue कि आप ब्लाइंड होके कैसे ऊपर चढ़ेंगे, ब्लाइंड होके कैसे एयरक्राफ्ट में जाएंगे, आप व्हील चेयर पे बैठ जाइए. तो मैंने कहा यार मेरे पैर तो चल सकते हैं, मैंने माउंटेनियरिंग करी है, मैंने रॉक क्लाइंबिंग करी है, बंजी जंपिंग करी है, तो पैरों में इश्यू नहीं है, मैं चल सकती हूँ. आप मुझे प्लीज हाथ पकड़िए या अपना हाथ दिखाइए, मैं आपको वहां से पकड़ूंगी और आप बस चलते जाइए, आपके साथ साथ चलूंगी. सो एक जगह पर ही देयर वाज अ स्ट्रगल, बट मोस्टली इट यूज्ड टू बी अ कन्वीनिएंट थिंग. Right. So how many years did you work in Wipro? I worked for 8 years. And it was all in learning and development, and was your job just restricted to training, or you had other assignments also? As my role expanded, as I grew into the hierarchy, role expanded, तो learning and development के साथ साथ और भी काम होते थे, although related to learning and development, but it got expanded. We had to go to different other verticals. जैसे telecom vertical है, there used to be a banking vertical, there used to be a finance vertical, जो जिनके लिए Wipro as a सर्विस प्रोवाइडर काम करता था. तो हमारी एज अ ट्रेनिंग टीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनके पास जाके थोड़ा सा एज अ कंसल्टेंट फिगर आउट, डू द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कि उनके पास क्या जरूरत है, कैसे हम उनको आगे सपोर्ट कर सकते हैं टू इनहांस देयर बिजनेस, टू फर्दर देयर ओन बिजनेस. तो इस तरह का काम भी करते थे जहाँ पे द टीम यूज्ड टू सिट इन यूएस, टीम यूज्ड टू सिट इन यूके, टीम यूज्ड टू सिट इन वेरियस डिफरेंट ज्योग्राफीज, जिसके लिए सुबह 6 बजे भी लॉगिन कभी कभी करना होता था घर से, रात को भी 11 बजे लॉगिन करना पड़ता टू गैदर द डू द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. सो वर्क गॉट एक्सपैंडेड
Another work which was very interesting there was to write articles based on the training that you are doing and publish it internally or externally. Externally when I say journals and all, and internally हमारा अंदर ही एक रीडर्स डाइजेस्ट होता था हमारी टीम का ट्रेनिंग टीम का उसमें पब्लिश करना. बट दे यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रिव्यू by the leaders. मेरे immediate boss के boss, there used to be 3 level of review for that particular article. So वो बहुत सी ज्यादा इंटरेस्टिंग और enriching एक्सपीरियंस होता था. पर मेरे केस में क्या होता था, लोग आर्टिकल उठाते थे, कहीं से भी रीड करते थे, हार्ड कॉपी भी उठा लाते थे लाइब्रेरी से, पर मेरे साथ में लिमिटेशन ये होती थी कि मैं लाइब्रेरी जाके नहीं यूज कर पाती थी. सो अगेन मेरे लेवल पे वहां पे ई लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं था किसी को भी. So मुझे स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ा था विद माय गिवन कंडीशन. आई नीड एन एक्सेस ऑफ ई लाइब्रेरी जो विप्रो की होती थी, जिसका मुझे एक्सेस इजीली होता था एंड विच वाज एक्सेसिबल विद द स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर. तो Right. वो स्पेसिफिकली किया मैंने एंड देन आई कुड मैनेज टू डू दैट, मैनेज टू राइट आर्टिकल्स, पब्लिश देम, डू ऑल ऑफ दैट. So did your tenure with Wipro result in more job opportunities for other visually impaired people? डेफिनेटली यस. जब मैंने ज्वाइन किया था तो विप्रो में उस टाइम पे केवल एक मैं ही थी जिसने ज्वाइन किया था विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड दैट टू विद 100% विजुअल इम्पेयरमेंट. Right. मेरे बाद देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर हायर्ड फ्रॉम डिफरेंट मैनेजमेंट स्कूल्स एंड ये तो मैनेजमेंट की बात है. मैनेजमेंट के अलावा भी देयर वर पीपल हु वर हायर्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग स्कूल्स. So when I left in 2016, there were around 1100 1200 people all across Wipro with impairments, different impairments, not only visual impairment but different impairments. So that was a big achievement. Did you make any conscious effort to bring about this change, or do you think your performance on the job was good enough for bringing about this change? I think it was all performance. I personally did not conscious effort नहीं डाला था, but in terms of making policies, in terms of educating people, वो मैं consciously करती थी. Like small example, when I used to travel, I used to travel every day to new city, Bombay to Kochi to Chennai. So odd hours में flights लेनी पड़ती थी 1 a.m. को, 3-4 a.m. को. So again, although आपका ऑफिस का कैब ड्राइवर है, but again the cab driver is a driver. Yeah. Safety is a concern for the family members कि यार तुम 4 बजे जा रही हो, तुम 1 बजे जा रहे हो. How is initially my husband used to travel with me, but for how long will he also do that? Sure. So I had to put my foot down and tell the authorities that I need a female security guard, and again that too not the vendor one, on rolls वाली security guard चाहिए मुझे. तो वो नहीं माने. They kind of सुनकर भी अनसुना किया. They kind of हाँ करते हैं करके. But I had to put my foot down and I had to cancel all my programs for next 15 days जो scheduled थे, planned थे in different cities, and told them unless मेरी security and safety नहीं assure करेंगे, I will not travel. I'll keep doing all my programs here in Bangalore, but I will not do it anywhere else in other cities. Right. So believe me, George, within 3 days, there was a policy right in place. Oh, very good. Yeah. But I had to put my foot down and tell them, I need this. No, but kahin zabardasti, but I got my rights. No, but I think the positive side is that they responded. They could very easily have said, asked you can leave then, they could have very, very easily done that. Yeah. I think credit to them that they actually kind of agreed for making the change. Yeah, great. Yeah. So after all this, one more question here. Now, among people who are on Zoom as well as people who would be watching this program later on YouTube as well as who are watching it right now on Facebook, if you were to say 5 things when you prepare for a private sector job, what are 5 important things that an aspiring candidate should keep in mind? First and foremost thing I would say, communication, the channel of communication. Mm-hmm. Again, people may have inhibitions, people may have some reservations, but being a person with visual impairment, आप अपने आप से कितना अगले को educate कर पा रहे हैं,
you have to keep the channel open. Right. Let me give you an example again. There was a certification happening for all the trainers in Yeah. 2010. Yeah. And मेरे को उसमें नहीं मेलर आया था, मुझे सिलेक्ट भी नहीं किया था. Yeah. So upfront to the head of my team, I went up to him saying that, and I was a junior most in the team at that time in 2010. So मैंने उनको पूछा, is there any grade criteria attached to this certification? So they said, why are you asking this? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे invite नहीं आया for this particular certification. It was a coaching international coaching federation से invitation था for the certification on coaching. Yes. So they said कि नहीं, we thought कि तुम coaching कैसे करोगे, तुम्हें लोगों का expression नहीं पता लगेगा, तुम लोगों का चेहरा नहीं देख पाओगे. So it would be a wastage of money, इसलिए हमने आपको certification भेजा नहीं है. So my question was to them, आपने किसी और को देखा है करते हुए इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं करके? So the person said नहीं. तो मैंने कहा मैं एक बार फैकल्टी से बात कर लूं जो ये सेशन करेंगे हमारे, एंड लेट मी अंडरस्टैंड कि वो क्या कराने वाले हैं, लेट मी अंडरस्टैंड कि लिमिटेशन क्या हो सकती है. एंड ऑन द अदर साइड द फैकल्टी वाज अमेज्ड. शी वाज लाइक, नुपुर आप क्यों नहीं आ सकती, कोचिंग इज अ वेरी गुड डोमेन फॉर यू, आप लेट्स एक्सप्लोर, डू इट टुगेदर. सो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन अगले ने कह दिया और आपने सुन लिया, should not stop the communication. Yeah. You should keep asking कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, with a lot of politeness with respect to the due policies of that particular organization. इसीलिए मैंने पहले पूछा कि वो ग्रेड वाइज कुछ था उसमें, because I was a junior most इसलिए मुझे नहीं रखा. When that got clarified, then I had to fight कि मुझे भी करना है. Okay, so communication is one. What is the second one? Second one is your attitude should be right. When I say attitude should be right, you should not self pity. कि यार मैं ऐसी हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं. जी. लोगों को लगता है मुझे पता ही नहीं लगेगा सर्टिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए दे लेफ्ट मी. Right. बट कैन आई गो एंड आस्क माई सेल्फ? मेरे लिए तो मैं ही पूछूंगी ना. आई हैव टू आस्क. सो आई हैव टू attitude of asking for help, asking attitude of seeking support from others, attitude of understanding कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा, what could be the reason behind it, all of that. Yeah. Second is attitude. Yeah, and then third is your own hard work. आपको अपनी तरफ से कोई लूप नहीं छोड़ना है कि आपने कुछ हार्ड वर्क छोड़ा. जैसे मुझे आर्टिकल लिखने थे तो मैंने लिखे, मुझे उसके लिए क्या चाहिए मैंने वो फिगर आउट किया. लुक फॉर अ वे आउट. अगर कोई बंदा देखने वाला है वो जर्नल्स देख पा रहा है, न्यूज़पेपर देख पा रहा है, तो मैं ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकती हूँ, व्हाट एल्स कैन आई डू, जिससे कि मैं उस पीछे ना छूटूं. Okay. So educating myself, enriching my own knowledge, looking for an alternative way. And third thing is having a problem solving mindset. Not getting stuck with the problem. Right. When I say not getting stuck with the problem, again, it's a normal mindset. It's not only with people with disabilities, it's with everyone, human mindset. कि प्रॉब्लम आ गया तो हम उसमें सल्व करते रहते हैं, हम उसमें रोते रहते हैं, यार हो गया ये, एंड व्हाई ओनली मी. तो मेरे दिमाग में till since the time I have lost my eyesight till date, it's been now almost 29-30 years. एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि why only me. जब मैं कैट का एग्जाम लिखने वाली थी, जस्ट 10-15 डेज पहले ही मुझे चिट्ठी आई थी. आई एम लखनऊ से उस वक्त वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि जो मेरी राइटर है, जिसके डॉक्यूमेंट मैंने उनको ऑलरेडी भेज दिए थे, कि वो मेरा एग्जाम नहीं लिख सकती है, सेइंग कि उनके पास उस तरह की पॉलिसी नहीं है, वो आपका मेरा एग्जाम नहीं लिख सकती है. नाउ ठीक है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. आई क्राइड फॉर सम टाइम, फॉर हाफ एन आवर और सो, बट आई सेड मैंने तो एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करी है, मैं 2 साल से घर नहीं गई हूँ. आई हैव नॉट स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स, आई हैव नॉट गॉन टू एनी वेडिंग ऑफ माई कजिन्स. ऐसा नहीं हो सकता है. तो आई फिगर्ड आउट कि क्या कर सकता है. आई वेंट टू द डिप्टी कमिश्नर डिसेबिलिटी दिल्ली कि इस तरह का लेटर आया है एंड आई थिंक दिस इज अगेंस्ट माई राइट. सो ही इमीडिएटली टुक उस वक्त डाडियल सर होते थे, उन्होंने इमीडिएटली उनको एक चिट्ठी बनाई, लिखी, फैक्स करी टू द अथॉरिटीज इन आई एम लखनऊ. एंड
5-6 दिन बाद ही I got another letter with from IIM Lucknow saying that apologies, your writer can write the exam. तो Right. आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है एंड फिगर आउट कि कैसे कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है. So that's And number 4. Yeah. lastly, give credit to those people who have helped you. Right. Excellent. So you made a very, very big change in 2016, I guess, when you decided to join a public sector undertaking. What was the reason behind this change, and how did this change happen? That's a good question. How did that change happen? सबसे पहले let me share that. In 2012, I was blessed with a baby boy. Again, given the nature of the job, I was traveling every day somewhere here and there. I had a maternity of 3 months, but जब मैंने चौथे महीने शुरू किया, join किया तो but I had to get back to my work. I had to keep performing. Yeah. तो 12, 13, 14 तक करती रही, but I saw my son sleeping all the time. मैं जब घर जाती थी तो सोता रहता था, खड़ा होता, मैं आती थी तब सोता रहता था, because I used to leave home by 7 in the morning and कभी कभी घर में 9 बजे पहुंचती थी, कभी 10 बजे पहुंचती थी. So it used to be really, really tough for me at least, being a woman, Yeah. being a mother and new mother कि यार मैं बच्चे के साथ खेलूंगी कब, बच्चे के साथ टाइम कब स्पेंड करूंगी. तो वहां थोड़ा सा मुश्किल होने लगा था मुझे. So I went to my boss and said कि यार मुझे 5:30-6 बजे घर निकलना है, मैं नहीं रुक सकती 9 बजे, ये क्लाइंट मीटिंग में घर से कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि कर सकते हैं, बट फॉर नॉट ऑल, कहीं ना कहीं तो फेस टू फेस आपको जाना पड़ेगा. सो आई केप्ट सेइंग दैट यार मैं तो घर से ही करूंगी, मैं नहीं रुकूंगी ऑफिस में, आप इसमें जो करना कर लीजिए. they said नुपुर देयर इज अ क्लॉज साथ में कि ठीक है आप अपने मन की करिए, फिर हम भी अपने मन की करेंगे. यू एक्सपेक्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, फिर वो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज you have to make a differential achievement score also for yourself. Tomorrow if I'm promoting you, I have to tell people कि नूपुर ने ये कितना अचीव किया है, इसलिए I'm promoting you. So you have to figure out कि तुम stagnated ही यही इसी पोजीशन पे रहना चाहोगे, you would want to grow. So that time I decided my family first, my private my means with my organization responsibility, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है. So that very day I started looking out, hunting out कि यार ऐसे नहीं चलेगा, कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए. आई कांट कीप वर्किंग थ्रू आउट द डे ऑल द टाइम. तो हंट चला, 14 में चला, 15 में चला, एंड आई वाज श्योर कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जाएंगे तो द केस इज गोइंग टू बी द सेम. मैंने बहुत कुछ सीखा था विप्रो में, बहुत कुछ मेरे को चैलेंजेस आए थे. सो आई वाज वेरी हैप्पी विद माय जॉब. मेरे लिए मुश्किल था टू मूव टू अ पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन, बट समवेयर आई हैड टू again figure out, tell myself what is the priority for me. So priority for me was my family. Right. So that's the reason I joined Gale. And how did it happen? I had to be vigilant. सारे employment news देखना, पढ़ना, online ढूंढते रहना. एंड सबसे बड़ी चीज, हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी जुड़े हुए हैं, एक्सेस इंडिया के मेल्स, एक एक मेल जो आता था मेरे इनबॉक्स में, मैं उसको देखती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी किसी मेल पे मेरे को मेरी वाली अपॉर्चुनिटी मिलने का मुझे ये था, होप थी कि आएगा जरूर. तो अगेन मुझे एक्सेस इंडिया से ही गेल में ओपनिंग है उसका मेलर मिला था. आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज इट थ्रू आईवे. आई थिंक इट वाज थ्रू आईवे, क्योंकि आईवे के जो न्यूज आते हैं अभी ऋतुजन भेजती है, पहले कौन भेजता था मुझे याद नहीं है. वहां से ही कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी, एंड देन आई वेंट टू द गेल साइट, वो देखा एंड आई फिल्ड अप द फॉर्म. उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन था विच वाज रियली बिग और एक्सेसिबल नहीं था. तो वहां पे भी एक बड़ा चैलेंज था कि इसको भरेंगे कैसे, क्योंकि दिन भर तो मैं ऑफिस में रहती हूँ. तो देयर इज एन एनजीओ इन बैंगलोर, हमारे काफी सारे दोस्त जानते होंगे, मित्र ज्योति. Right. तो वन फाइन सैटरडे जब मैंने ये ओपनिंग देखी तो मैं वहां गई. वहां पे आई रिक्वेस्टेड मधु सिंगल मैम, अगेन शी इज अ फेस इन द इंडस्ट्री. उनके पास गई, मैंने कहा मैम मुझे भरना है फॉर्म, मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए. तो उनके पास भी सबसे बड़ा सवाल ये था, नुपुर तो जॉब बदलेगी,
मैंने कहा मैम बदलेंगे नहीं बदलेंगे, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, अभी फिलहाल अप्लाई तो कर ही देते हैं, क्या होता है देखेंगे। तो शी गेव मी अ गर्ल जिसने बैठ के मेरे साथ पूरा फॉर्म फिल किया एंड उसको सबमिट कर दिया, बट देयर वाज नॉट ओनली वन लेवल ऑफ दैट एप्लीकेशन। वो भर दिया, फिर उसके बाद में वहाँ पे कुछ इंटरनल अप्रूवल होके गेल से फिर से आया कि ये आपको और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देर रात में मेरे साथ बैठ के वो फिल किया और उसको सबमिट करा अलॉन्ग विद माय हस्बैंड। वो भी मेरे साथ थोड़ा सा बैठते थे रात में बिकॉज माय हस्बैंड कैन सी अ लिटिल। तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी इज अ चैलेंज, बट उतना चैलेंजिंग नहीं जितना मेरे लिए हो जाता था कि उसको बिल्कुल ही नेविगेट नहीं कर पाती थी। तो दोनों मिलकर उसको रात को 12 बजे तक 1 बजे तक बैठ के भरते थे। कर लिया, फाइनली सबमिटेड इट। देयर वाज अ कॉल फॉर इंटरव्यू। नाउ कॉल फॉर द इंटरव्यू अगेन केम कि आप ट्रेन से आ जाइए, सेकंड क्लास ट्रेन से आ जाइए, सेकंड एसी से आ जाइए। नाउ अगेन चैलेंजिंग बीइंग अ फैमिली पर्सन, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर सकते थे, सन कुड नॉट ट्रैवल, छोटा था बच्चा। So I told them, Gale people, I would not travel by train. And if you really want me to come for the interview to Delhi, I would need an air ticket. Again, थोड़ा सा हिकअप्स आए थे वहाँ पे, but they finally told me, okay, you come by air and we'll refund you later. So it was only interview. It was not a written exam. इंटरव्यू 2-3 लेवल के हुए थे, पहले some junior people took and then the senior people and then the executive directors and directors came for the interview. Interview was all theory based, which was not tough thing for a trainer to do. वो हो गया. Now the time came when they gave me an offer. Again a married person and with visual impairment, उन्होंने कहा कि within 15 days आपको join करना है in Noida, in Delhi. I said, यार मैं अकेले कैसे आऊंगी? Again I've got a child, I've got my husband who is working here in Bangalore. Can I get 6 months time? So that in the meanwhile, my husband can also look for a job for himself, and then we can all together relocate ourselves. So again, they were very very supportive, and they agreed कि आपको अभी हम फिलहाल 3 महीने देते हैं, आप देख लीजिए, and do let us know in case you need further extension. So that was a huge support from Gail's side. तो वो मिल गए, बात हो गई. My husband also found a job, so we relocated. So I've got two questions before I open the floor out to the others on the platform. Question is, what is your, like you were an extensive trainer in Wipro. What is your job content in Gale? Job content is similar. Traveling is a little less because यहाँ पे central training institute है जहाँ पे मैं काम करती हूँ. That's called Gale Training Institute. So training, traveling cut down हो गया है, although once in a while, once in a quarter, training traveling is required, and that to a remote location, plants में क्योंकि जाना पड़ता है. Otherwise, the role is almost the same: writing articles, planning programs, developing the content for the program, ट्रेनिंग. यहाँ पे ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग थोड़ा सा कम होता है बिकॉज यहाँ पे ऑल टुगेदर ही देर आर अराउंड 4,500 पीपल. तो इतना ज्यादा ट्रेनिंग नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर ट्रेनिंग होती है, ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग होती है. यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग कंटेंट डेवलपमेंट का ज्यादा काम है बिकॉज external faculties आते हैं. being a PSU, they believe in external faculties, तो उनको भी लेके आते हैं. But I would be happy to share, since the time I have joined, it's been 5 years, I'll complete 5 years now in April. साल की कम से कम भी 3-4 ट्रेनिंग जो बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है, उनमें से 3-4 ट्रेनिंग मैं इन हाउस अपने आप से अब करने लगी हूँ, slowly and gradually, starting with only one in 2016. So trying to change the culture. So while working in Wipro, did you also, since Wipro has its offices all over the world, did you also travel internationally to do in connection with your work, or your work was mainly in India? There were just opportunity to travel twice, once to Paris and secondly to Singapore, but I declined. And the final question I want to ask you is, tell us a little bit about your family. You said you are married. You have I think your son would be approximately 9 or 10 now.
Yeah. Tell us a little bit about your family. What do they do? And when did you get married? How did the marriage happen and so on? Okay. I've got a beautiful family. I've got my mother-in-law in my family. I've got husband. My husband is Krishan Kumar Murugan. Many of you would know him. He works with presently HCL, Noida branch. And I've got a very smart son. He's approximately 9 years old. He's studying class 3. And that's about my family. I've got my parents who live in Haryana. They keep visiting me. Rather, my mother is right now here with me. So that's about my family. And how about how I got married and how did it happen? Me and my husband studied together in National Association for the Blind. We met there. एंड बचपन से ही हम लोग के शौक सिमिलर थे, थोड़ा एडवेंचरस थे, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह हमने साथ में किया था. So that's how the kind of relationship developed and marriage happened. So do you still pursue your passions of rock climbing and outdoor activities still, or all that now profession and family is the center of action now? Not really. उतना extensively नहीं होता है, but yes, we still pursue our passion. अभी पीछे दिनों ही we were in Kufri, Shimla. So we went for now the sun is big, तो उसको साथ में लेके we went for trekking. We went उतना ज़्यादा probably हम दोनों अकेले होते तो हम 5, 6, 7 kilometers जाते. But we had our mother-in-law also with us and son. So we went थोड़ा सा गए, थोड़ा सा आ गए करके. तो थोड़ा सा moderate quantity में. But yes, it still happens. My husband did that very recently. He went to Uttarkashi and he did extensive trekking in Uttarkashi. A little higher on Uttarkashi, भी थोड़ा सा और ऊंचा. Right. So excellent, Nupur. I think we will. I'm sure the others who have also logged in would like to ask you questions. So, Sure. Shruti, over to you for the questions.